So today we will discuss on the database management system for accounting. Okay, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम प्यार से डीबीएमएस कहते हैं, ठीक है ना, डीबीएमएस कहते हैं। तो आईटी का ये एक मतलब बहुत ही अहम मुद्दा होता है। जो आईटी पढ़ रखा है उसको हालांकि पता होगा भी ये चीज लेकिन यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कैसे यूज करेंगे हम। सो बाय यूजिंग द डीबीएमएस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ वी कैन improve आवर बिजनेस, हाउ वी कैन मैनेज आवर बिजनेस डेटा, दैट इज आवर प्राइम मोटर टुडे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो बहुत सिंपल बात है, इसको अगर हम व्याख्या करने जाएंगे तो डेटा आप लोग को पता है ही। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। एनी इंफॉर्मेशन दैट आर केप्ट इन ए सिस्टमेटिक मैनर, understand the points, whether that is written on a plain paper or in a computer like this. When I'm showing this material, the study material, this is also one data. Understand the point. The students data I already have। नहीं तो हम आपको कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं? किसी का कोई प्रॉब्लम होता है वगैरह, किसी का कोई समस्या होता है, एग्जाम में प्रॉब्लम हो गया, किसी का कोई मार्क में प्रॉब्लम हुआ, या तो कोई फाइन जो पेनल्टीज जैसे फॉर्म नहीं भरा है, ऑल दीज थिंग्स, उसके लिए हमको कॉल करना पड़ता है। तो आई हैव ए मास डेटा ऑन द स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास, हमारे पास होता है। तो लाइक दिस, एक कंपनी होता है तो कंपनी के एचआर के पास डेटा नहीं रहेगा तो वो उसको कंपनी कैसे मैनेज करेगा? मैनेजर के पास डेटा नहीं रहेगा तो वो परचेज कैसे करेगा? मार्केटिंग एडवर्टाइजर के पास डेटा नहीं रहेगा तो वो मार्केटिंग कैसे करेगा? सो डेटा और डेटा बेस क्या होता है? जहां पे हम एक अपना बेस बना लेंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट, एक स्टोरेज बना लेंगे, तो उसको कहते हैं डेटा बेस। समझ आएगा? तो अब यूं समझ लो कि जो मटका होता है जिसमें आप पैसा रखते हो, है कि नहीं, पिकनिक जाएंगे करके घूमने, उसमें जो सेविंग करके रखते हो, आपका जो मनी बैंक होता है, तो वो एक मनी बेस हो गया। लाइक दिस, ये डेटाबेस। अंडरस्टैंड द पॉइंट। नेक्स्ट इट, डेटा को, डेटाबेस जो है जहां पे डेटा स्टोर हम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, फाइल्स है, माना कोई ऑफिस है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, हम इंटरनल डेटा का स्टोरेज है, बहुत सारा फाइल्स है, उसको कैसे मैनेज करेंगे और उसका एंटायर सिस्टम, दिस इज व्हाट कॉल्ड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दैट मीन्स कि एंटायर सिस्टम विल बी एस्टेब्लिश्ड वेयर वी कैन मैनेज, we can store the data, we can retrieve the data, we can edit, modify the data, we can delete the data as per our need. Understand the points? This is what called database management system. And that DBMS system, the DBMS, database management system, that must be useful for our business. And basically in the business domain sector is the account section. Understand the points? So how DBMS system that will help us for accounting and to manage the business, this is what called our prime motto. So today we'll learn on this topic. Chalo next is, so I have explained database management system for accounting and business in short. Now let's read. So for introducing the database management system, look at here, watch me carefully, understand the point, look at the screen what I am saying. So for introducing the database management system, this is a information management system, this is an accounting management system, this is an ERP system, and you can manage your accounts also, you can manage as you manage your business in Tally. Understand the points? Obviously Tally cannot be replaced with the DBMS. Till then, as you are maintaining your business through the Tally accounting software, you can also manage your business through the DBMS system. Understand the points? So today my focus will be that in quick short, in order to make you taste towards the DBMS system, that what the DBMS system can do for you, I will be quick to showing you the database management package, and I will be explaining you the various utilities of the database management system in short today, so that you have an interest, you can gain a taste to learn it. Understand the points? So be very quick. Next, in the next class, the left out things, though theories, though etc, those who have not yet understood, जो आप नहीं समझ सके, जो आपका प्रॉब्लम रहा है, कुछ छूट गया, कुछ आधा अधूरा जो झिलमिला सा गया, उसको हम फिर आगे क्लास जाएंगे तो उसमें थ्योरी कवर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात बताएं, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट रख सकते हो स्प्रेडशीट की, टेक्स्ट के हिसाब से जो भी चीजें आप रख सकते थे, जैसे कि आप एक्सेल शीट यूज करते हो उससे बहुत एडवांस्ड है डीबीएमएस सिस्टम, जो आप वर्ड यूज करते हो उससे बहुत एडवांस है डीबीएमएस सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे टाइप के, जैसे कि एक्सेस है, एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखा है, ओरेकल एक कंपनी है, एसक्यूएल सर्वर है, ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग पैकेज होते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो यही बात है, उसके जरिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो रहे हैं। समझ में यही बात? और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मेन चीजें क्या होता है, मेन चीजें क्या होता है, उसमें सबसे पॉपुलर जो है वो एमएस एक्सेस है। एमएस एक्सेस क्या होता है ना, इट इज इजीली अंडरस्टूड, इट्स इंटरफेस इज सो इजी, एंड आज यू आर यूजिंग अदर यूटिलिटीज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट की देखिए वर्ड यूज करते हो, आप लोग देखे होंगे लैपटॉप में, कभी चिट्ठी लिखे होंगे आप माइक्रोसॉफ्ट में उसका, क्योंकि विंडोज तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो वो ज्यादा प्रमोट करता है अपना ऑफिस पैकेज को। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो
क्या होता है कि बाकी जो डीबीएमएस पैकेज से ज्यादा एमएस एक्सेस इसलिए चलते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम ही माइक्रोसॉफ्ट का है और वर्ल्ड वाइड वही ज्यादा चलता है, इसलिए एमएस एक्सेस को हम भी पढ़ेंगे और यही तुम्हारा एग्जाम में भी आने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देख लो, फिर बाद में नहीं तो समझने में दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखो, तो कोई भी डीबीएमएस सिस्टम में हो या फिर एमएस एक्सेस में हो, चार मेन चीजें होते हैं, ठीक है ना, आप इसको याद रखना पड़ेगा। एक तो होता है 4 एलिमेंट्स आर देयर। नंबर 1 टेबल, जहां पे हम डेटा डिजाइन करके रखेंगे। नेक्स्ट वीक क्वेरीज, थोड़ा इसको क्वेरीज को बाद में समझते हैं। फॉर्म्स, एक बार होता है टेबल, टेबल में डेटा कैसे स्टोर करेंगे उसको एक डिजाइन करेंगे। फॉर्म्स में क्या होता है ना, टेबल प्राइमरी फैक्टर, दिस इज द प्राइमरी फैक्टर, ऑल 3 फैक्टर्स आर डिपेंडेंट अपॉन द टेबल। इफ यू हैवंट क्रिएटेड टेबल देन बाकी यूटिलिटी आप नहीं कर सकते हो, आपको टेबल पहले बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो तो आज डिटेल चर्चा होगा ही एक बार। नेक्स्ट वीडियो आप देख लो। फॉर्म्स, फॉर्म्स जो होते हैं वो टेबल को एडिट करने के लिए होते हैं, और रिपोर्ट जो होते हैं हमारे रिपोर्ट, जैसे कि हम मानेंगे कि 20 से 25 रोल नंबर की डिटेल निकलना चाहिए तो रिपोर्ट से निकलेगा। क्वेरीज क्या होता है ना, क्वेरीज हम ऐसे डिजाइन करेंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, जिसमें कि वेरियस क्राइटेरियाज, वेरियस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपकी डाटा शो करेगा, समझ में बात। और ये सारे के सारे डीबीएमएस पैकेज में दिखाई देते हैं, यही बात है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। हालांकि तो ये जो स्टडी मटेरियल है लोअर लेवल का था, लेकिन उन लोग का दिमाग में उतना भी नहीं है कि वो डिटेल समझ सके, तो और हम पढ़ेंगे जो भी सारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आज डिस्कस वी विल ओपन द एमएस एक्सेस, तो दैट इज ए सिस्टम नाउ थ्रू व्हिच वी विल लर्न दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सेस, दिस इज द, तो इन द फाइंडर और इन द सर्च बार यू टाइप द एक्सेस, दिस इज द एप्लीकेशन एक्सेस। एमएस एक्सेस उसको कहा जा रहा था, आजकल वो सिर्फ एक्सेस कहा जा रहा है, जैसे कि सिर्फ वर्ड, सिर्फ एक्सेल, सिर्फ एक्सेस कहे जाए, ठीक है ना। इसको हम ओपन करेंगे, हालांकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो जैसे हम बता दे रहे हैं, पहले इसको पहले क्लिक कर दिया जाए। हम अकाउंट्स करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मार्ग है, साप पैकेज है, अंडरस्टैंड द बीजी सॉफ्टवेयर है, टाली है, तो सो मेनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर देयर, बट टाली इज द मोस्ट फेमस, दैट्स व्हाई यू यूज्ड टू लर्न द टाली लाइक दिस। तो डीबीएमएस पैकेज को संभालने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हमको सबसे प्यारा है क्या, एमएस सक्सेस, क्योंकि वो इजी होता है और माइक्रोसॉफ्ट का है, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि बस। तो हम चलिए एक ब्लैंक डेटाबेस हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें सबसे पहले जैसे ही आप ब्लैंक डेटाबेस सिलेक्ट करोगे, लुक एट हियर, ये देखो मटका दिखा दे रहा है, यहाँ पे सारा का सारा डेटा भरा जाएगा, जैसे कि मिक्सचर का डिब्बा नहीं होता है, मिक्सचर जहां से निकाल करके खाते हो आप, ये मिक्सचर का डिब्बा है जहां पे आप मिक्सचर डालेंगे, हम बिस्किट डाल के रखते हो, कुरकुरे डाल के रखते हो, है होता है कि नहीं, अचार डाल के रखते हो, वैसे ही, ठीक है ना। ये डीबीएमएस डब्बा है जहां पे आप ये कुरकुरे डालेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो अभी फुल नेम सबसे पहले पूछा, तो हम एक तो एग्जांपल लेंगे कि एम्प्लॉइज डेटा, ठीक है ना, एम्प्लॉइज डेटा करके हम लिखते हैं, तो एक एक चीज सारे के सारे समझेंगे। तो सबसे पहले आपको एमएस एक्सेस खोलना है, एमएस एक्सेस खोलने के बाद उसका नेम देना पड़ेगा एम्प्लॉइज डेटा, और उसमें कैसे पूरा डेटाबेस काम करता है। इन शॉर्ट हम एक क्लास में चारों थिंग सीखने की कोशिश करेंगे। क्या क्या था वो चार फैक्टर, टेबल, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट्स, ओके, हम दिखाएंगे अंदर जाकर के। अब तो इसका डेटा पाथ है, देखो कहां पे, यूजर एचपी वन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स, चाहे तो आप इसको भी चेंज कर सकते थे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, जैसे ही क्लिक कर दोगे वो आपको पूछेगा डेटा पाथ, आप कहां पे इसको रखना चाहते हो, समझ में आई बात, इसको आपको कंप्यूटर में आपको कहां पे रखना चाहते हो, तो आपकी हिसाब से। तो हम मानो करते हैं डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स में एंटर कर देते हैं, तो वो पाथ सिलेक्ट हो जाएगा, और क्रिएट के ऑप्शन में चल करके अंदर हम चल जाते हैं, ठीक, ओके। तो नंबर 1 A to Z, फर्स्ट this is the title bar, understand the point, this is the title bar of the MS Access package, and in the title bar the employees data, first the title लिखा हुआ है, जिस फाइल हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस की उसका फाइल लिखा होता है। सबसे पहले लिखो कि employees data, when I am teaching you something you must keep writing your own notes, understand the points, this may be missed one, और बाद में एग्जाम में सवाल आएंगे, आप ऊपर देखते रहोगे, कोई समस्या नहीं। तो ये टाइटल बार में सबसे पहले टाइटल लिखा जाता है, फिर डाटाबेस यूज कर रहे हैं, तो ये कहां पे हमारा स्टोर होने वाला है उसका पूरा पाथ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम सी ड्राइव में जाएंगे, यूजर की फोल्डर में, एचपी की फोल्डर में, वन ड्राइव की फोल्डर में, डॉक्यूमेंट में एम्प्लॉइज डाटा देंगे, और उसका जो एक्सटेंशन होता है क्या, यही सबसे वाला सवाल है, आप सबसे याद रखो एक्सटेंशन क्या डेटाबेस की, .accdb, कैसे याद रखेंगे, acc फॉर एक्सेस, db फॉर डेटाबेस, तो .accdb, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स नाउ। अब ये पूछ रहा है कि सबसे फेमस था डीबीएमएस का एक्सेस 2007, तो एक्सेस 2007 सबसे फेमस था, लेकिन हम यूज कर रहे हैं ऑफिस 2016, तो इसलिए लिखा गया देखो एक्सेस 2007 टू 2016 फाइल फॉर्मेट। इसका मतलब ये है कि हम जो फाइल फॉर्मेट यूज करेंगे वो 2007 से 2016 तक सबको कवर करेगा, वो सब फॉर्मेट में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना।
और बाद में लिखा हो एक्सेस, ठीक है ना। यही बात है, ये विंडो यहाँ से आप सेव कर सकते हो, यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो कुछ भी चीज का, हालांकि कुछ नहीं दिए हैं तो प्रिंट प्रीव्यू कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। देखो जैसे कि गुम हो गया, कुछ नहीं दिखाया क्योंकि हम कुछ किए ही नहीं। तो नंबर वन थिंग, सबसे पहले आपको क्रिएट क्या करना है, ये जो स्पेस आप देख रहे हो इसको हम कहेंगे रिबन, अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये जो स्पेस है, राइट डाउन इट, दिस इज टाइटल बार, नेक्स्ट टू इट दिस इज रिबन। आप पढ़े होंगे, अंडरस्टैंड, रिबन फीता की बात नहीं कर रहे। रिबन मीन्स द स्पेस वेयर ऑल द सेक्शंस आर लोकेटेड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। फिर क्या होता है, इसको चाहे तो आप मिनिमाइज कर सकते हो, यहां से आप देखो मिनिमाइज कर दोगे, हमको ये जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यही बात है। फिर अब मिनिमाइज कर देंगे तो लेकिन हमारा काम नहीं बनेगा, तो इसको हम फिर से मैक्सिमाइज कर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इट, तो दिस इज आवर रिबन एंड ऑल दीज आर वन सेक्शंस, समझ में आई बात, ये एक एक सेक्शन होते हैं, और ये जगह एक एक, ये जो जगह देख रहे हो ये भी एक एक सेक्शन ही होते हैं, ठीक है ना। कोई इसको टैब्स कहते हैं, कोई इसको सेक्शन कहते हैं, और यहाँ पे भी जो एक एक आएंगे वो भी टैब्स कहा जाता है, और यहाँ पे जो आएंगे वो भी एक एक सेक्शन और फाइल्स कहा जाएंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड यहाँ पे आपका गाइड मैप है, जो फॉर्म टेबल क्वेरी बनाओगे वो लेफ्ट साइड दिखेगा, और इस टेबल को सिलेक्ट करोगे उसका डेटा, रिलेटेड डेटा राइट साइड दिखाएगा, और मेन वर्कस्पेस जो है हमारा ये है, ठीक है। तो द मिडिल व्हाइट स्पेस इज नोन एज द वर्क स्पेस, ओके। एंड नेक्स्ट ये बॉटम बार, ओके। तो ये बॉटम बार जो है, ये बॉटम बार में आपका ये डिस्प्ले बार होता है जो स्टाटस डिस्प्ले करता है, आपकी कोई भी एक चीज का स्टाटस दिखाता है, दिस इज यू कैन सी द स्टाटस बार। और सबसे नीचे जो ये जो निकल रहा है खरगोश की तरह, एक एक बार चूहा की तरह, ये तो अलग चीज है, टास्क बार है, ये कंप्यूटर की है, वो सॉफ्टवेयर की नहीं है, ठीक है ना। छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वीक लुक एट हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफॉल्ट ये टेबल 1 करके सिलेक्ट हुआ ही है, समझ में आई बात, टेबल 1 क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो क्योंकि बिना टेबल के कुछ काम होगा नहीं, ठीक है ना। हम इसको भी क्लोज कर देते हैं भाई, और सबसे पहले जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टेबल का ऑप्शन दे रहा, ठीक है ना, और इस टेबल को पहले डिजाइन करेंगे, उसके बाद जाकर के जो पढ़ेंगे। तो होम में एक बार क्लिक करके हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। होम में क्लिक करके इतने सारे चीजें, क्रिएट में अगर जाएंगे तो क्या क्या चीजें देख लो। क्रिएट में आप यहाँ पे देखो टेबल सेक्शन है, यहाँ पे टेबल का यूटिलिटी है, क्वेरी से क्वेरी का यूटिलिटी है, फॉर्म से और रिपोर्ट से, 4 मेन सेक्शन है, 1 2 3 4। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये टेबल को हम ये भी कर रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि जैसे कि टेबल, ये जो एक एक, पहले सबसे पहले क्या होता है कि ये फील्ड क्रिएट करने को कह रहा है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, टेबल डिजाइन व्यू में चले जाते हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो सबसे पहले टेबल का नेम पूछ रहा है, तो टेबल का नाम हम दे देंगे एम्प्लॉई डेटा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ये जो टेबल होगा एम्प्लॉई डेटा, ज्यादातर कि इसमें काम में आते हैं। अभी डिजाइन व्यू में आ गया है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये बात है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, व्यू ऑप्शन यहाँ पे है, इस व्यू से आप डिजाइन व्यू में जा सकते हो, और इस व्यू के ऑप्शन में आप डेटा सेट व्यू में जा सकते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो डेटा सेट बाद में बनेगा, पहले उसको डिजाइन करोगे कि उसका फील्ड मेंशन करोगे, उसके बाद जाकर के कुछ काम कर सकते हो। तो अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज सिमिलर टू एक्सेल, बट ये एक्सेल का बहुत सुपेरियर वर्जन है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजर सिस्टम। तो हम व्यू में चलते हैं, सबसे पहले डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में क्या करोगे ना, फील्ड नेम, व्हाट आर द फील्ड्स, बेसिकली व्हिच आर द फील्ड्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा, ये जो टेबल आप दिख रहे हो, टेबल दिख रहे हो, ये एक एक कॉलम है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, एक एक जो कॉलम दिख रहे हो, और ये जो एक एक रो दिख रहे हो। तो एक एक कॉलम यहाँ पे जो दिख रहे हो, बाद में उस वो जा करके आपका फील्ड बन जाएंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, कॉलम बन जाएंगी, और ये एक एक रिकॉर्ड्स कहा जाएगा टेबल में, बाद में देखेंगे। तो फील्ड नेम क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले आईडी देंगे हम, ठीक है ना। टेबल में हम क्या करें, आईडी देंगे, एम्प्लॉय आईडी होगा। और ये क्या, ऑटो नंबर है, ऑटो नंबर का मतलब होता है ऑटोमेटिकली नंबर आएगा। इसमें क्या क्या ड्रॉप डाउन में ऑप्शन है वो भी एक बार हम आपको दिखा देते हैं। आईडी जो है वो ऑटो नंबर पर रहेगा, सेकंड में हम समझाते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए स्पेस मारते हैं। तो सबसे पहले फील्ड नेम, तो टेबल जब बनाएंगे हम, एक एक कॉलम जो बनेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा फील्ड में, जैसे कि आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एज, सैलरी, लाइक दिस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, वो एक एक फील्ड कहलाएंगे। डेटा टाइप, दैट मीन्स कि ये जो आईडी जो फील्ड है वो कौन सा डेटा टाइप है, वो ऑटो नंबर, दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली सीरियल होंगे। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन्स आप इस आईडी और ऑटो नंबर के बारे में क्या आप कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पे, उसको ये आपकी समझ के लिए लिखना चाहते हो, दैट इज ऑप्शनल, वो डीबीएमएस यूज नहीं करता है। फॉर योर रेफरेंस यू में राइट दिस, ओके। हम टैब मार देते हैं, फिर से नहीं लिखना है, तो यही बात है। उसके बाद हम मारते हैं नेम, ठीक है ना। नेम मार के जैसे ही एंटर मारोगे या फिर टैब मारोगे, तो यहाँ पे एक चीज वो कहा कि इट इज ए रिजर्व्ड वर्ड,
इट इज ए रिजर्व्ड वर्ड फॉर एमएस एक्सेस। दैट मीन्स क्या होता है ना, नेम जो आप मारे हो ना वो एक कमांड है, एमएस एक्सेस में एक कमांड है, समझ में? जैसे कि आप एक्सेल मारे हो इक्वल टू सम मारते हो एसयूएम, तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला ले जाता है। लाइक दिस कि नेम एक रिजर्व्ड वर्ड है जो कि कमांड के लिए एमएस एक्सेस में यूज होता है, और यहाँ पे आप सिर्फ एक फील्ड के लिए यूज करते हो। क्या ये आपके लिए सही है? हम कहते हैं ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। तो नेम शॉर्ट टेक्स्ट, ये शॉर्ट टेक्स्ट में रहने देते हैं। अब समझाते हैं हम चीज क्या है ना। आईडी ऑटोमेटिकली नंबर हो जाए इसलिए इसका ऑटो नंबर रहा। नेम में शॉर्ट टेक्स्ट, ड्रॉप डाउन मारते हैं क्या क्या चीजें, ये सारे के सारे चीजें हम आपको एक बार समझाते हैं, ठीक है ना, यही बात है। शॉर्ट टेक्स्ट मींस आप एक कोई छोटा चीज लिख सकते हो अप टू 255 वर्ड्स। लॉन्ग टेक्स्ट मतलब 255 कैरेक्टर, सॉरी कैरेक्टर से ऊपर लिख सकते हो। किसी को पैराग्राफ पैसेज लिखना है तो लॉन्ग टेक्स्ट यहाँ पे देंगे, किसी का नाम तो 255 के अंदर ही आएगा ना, तो लॉन्ग टेक्स्ट। किसी को ऐसे लिखना हो, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना हो। नंबर मीन्स सिर्फ नंबर फॉर्मेट में ये लेगा। तो इस ये फील्ड जो भी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं उसकी जो ड्रॉप डाउन है सारे के सारे हम समझा रहे हैं। तो लॉन्ग टेक्स्ट नंबर मतलब सिर्फ नंबर फॉर्मेट में आएगा, ठीक है ना। लार्ज नंबर मतलब बहुत बड़ा नंबर ले सकते हो उसमें, कोई बात नहीं, इसमें इनफाइनाइट तक। डेट टाइम, ये डेट टाइम के फॉर्मेट में आएंगे। और डेट टाइम एक्सटेंडेड मतलब ये सिंपल डेट टाइम हो गया। डेट टाइम एक्सटेंडेड मतलब उसमें और भी एक्सटेंशन ले सकते हो। करेंसी मतलब ये सिर्फ रुपया में आ जाएंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? ऑटोमेटिकली रुपया में आएंगे, दिखा देंगे हम बाद में, ठीक है ना। या तो डॉलर में या तो रुपीज में आएंगे, जिस हिसाब से ये डिजाइन हुआ होगा। ऑटो नंबर, फिर से ऑटो नंबर, ये देखो पहले सिलेक्ट हुआ ऑटो नंबर, मतलब आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली होगा। ये नो आंसर, जैसे हम पूछेंगे कि क्या ये मैरिड हो, आर यू मैरिड, ये नो सिर्फ आंसर होगा, तो ये नो। तो ये ऑयली ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। ऑयली मतलब ऑब्जेक्ट लिंक होता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? कुछ एक चीज को लिंक करते हो यहाँ पे, तो इसको दिया जाएगा। नेक्स्ट इट हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में जनरली क्या होता है, वेबसाइट का लिंक होता है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट इट अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब आप फाइल्स फोटोज वगैरह आप यहाँ पे अटैचमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। कैलकुलेटेड और लुकअप विजार्ड ये सब लिखा हो। लुकअप विजार्ड अगेन एक उसके अंदर एक सिस्टम है जहाँ पे कि और भी एमएस एक्सेस भी काम कर सकते हो। तो ग्रेजुअली विल लर्न ऑल द थिंग्स, अभी तक यूटिलाइज हम नहीं किए फर्स्ट क्लास में इतना सारा समझने की, चलिए बात ही नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन लिखा होता, फिर से टैब मार सकते हो, एंटर मार सकते हो, बात वही है। तो आईडी नेम पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छा नेम, नेम के बाद हम क्या मारेंगे यहाँ पे, डीओबी। आपको अब समझ आ ही रहा होगा डीओबी में क्या देंगे ना, ये ऑब्वियसली क्या होगा, डेट एंड टाइम, ठीक है ना। ठीक है, तो डेट टाइम मतलब डेट स्लैश टाइम लिखा, डीओबी डेट ऑफ बर्थ हम इसमें लिख दिए, नेम डेट ऑफ बर्थ लोगे किसी का, और क्या लोगे, हम पूछते हैं किसी की, हम यहाँ पे सैलरी लिखते हैं, ठीक है ना। तो चीज को शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। सैलरी, सैलरी किस में आएंगे, तो ये तो अमाउंट में आने हैं, करेंसी दे देते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो डॉलर और रुपया जिस हिसाब से सेट हुआ है कंप्यूटर में उस हिसाब से आने हैं। तो डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, सैलरी के बाद हम लिखते हैं लोकेशन। लोकेशन लिखने से कोई मतलब नहीं होगा, हम लिखते हैं ब्रांच। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? यही बात है, हम लिखते हैं ब्रांच। तो वही ब्रांच क्या होगा, एक शॉर्ट टेक्स्ट होगा। कौन सा ब्रांच में, हमारा मानो कि दो ही ब्रांच है, एक है कोटक एक है भुवनेश्वर, ऐसा मारते हैं, ठीक है ना। कटक और भुवनेश्वर ऐसे दो चीज मार देंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आईडी लिख दिए, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ लिख दिए, सैलरी लिख दिए, ब्रांच लिख दिए, ठीक है ना। और काम करेंगे, डेजिग्नेशन एक सही रहेगा, जो कि हम ऊपर लिख देने वाले थे लेकिन नीचे लिख दिए, कोई बात नहीं, डेजिग्नेशन, ठीक है ना। शॉर्ट टेक्स्ट में आ जाएंगे, दिस मच ऑफ थिंग ओनली। अंडरस्टैंड? पहले इतना ही करते हैं। तो ये हो गया हमारा टेबल। टेबल क्या हुआ नहीं, ये फील्ड नेम हो गया, ये डेटा टाइप हो गया। जैसे ही आप कुछ भी चीज एंटर करते हो सारे के सारे ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाते हैं। तो ये फील्ड नेम अभी हम डिजाइन कर रहे हैं, ये कोई टेबल नहीं बना रहे हैं, अब डाटा एंट्री नहीं हो रहा है, सिर्फ फील्ड नेम हम कर रहे हैं, ठीक है ना। यही बात है, लिखा हुआ है। तो अभी देखिए हम इसको क्लोज करते हैं। मानो अगर सेव हो गया होगा तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, नहीं सेव हुआ होगा तो वो क्वेश्चन पूछेगा, तो हम कर देंगे यस। समझ में आ रहा बात? अब ये देखो एम्प्लॉय डेटा को हम ओपन करते हैं, तो अभी देखो किसा ओपन हुआ, तो ये टेबल फॉर्म में अभी ओपन हो गया। तो जो जो फील्ड हम बनाए थे वो फील्ड ये है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? वो फील्ड ये है। तो एक एक कॉलम को एक एक फील्ड कहा जाता है टेबल की। और भाई वो तो ये एक 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 जो नीचे नीचे हम एंट्री करेंगे उसको एक एक रिकॉर्ड कहा जाएगा, ठीक है ना। अभी रिकॉर्ड करके दिखते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? इफ इट इज पॉसिबल देन आई विल मेक इट अवेलेबल लेटर सो यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन, अदरवाइज यू हैव टू रिकॉर्ड इट, ठीक है ना। फिर से द सेम थिंग विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द नेक्स्ट क्लासेस, सो दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू वरी। ओके, वी विल कीप इन शॉर्ट एंड आई एम एक्सप्लेनिंग द लेटर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एमएस एक्सेस
the thing is the advanced level, understand, of the Excel and all these things. That's why it's bit difficult to understand in the first instant, but this thing will be repeated again and again, so no problem at all. तो आईडी में आपको कुछ नहीं एंटर करना पड़ेगा, तो नेम लिखते हैं अभी, जैसे कि हम लिख रहे हैं मानो राजीव, राजीव लिख के एंटर कर सकते हो, या फिर हम मारते हैं टैब। तो ये डेट ऑफ बर्थ की फील्ड था, तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे आ गया कैलेंडर की ऑप्शन, समझ आई बात। तो कैलेंडर में चूज करते हैं। चलिए, अब बात ये कि ये बहुत पुराना दिनों की बात है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो हम एक लॉजिकल काम करेंगे ना, तो कैसे करोगे, देखो एंटर कर रहे हैं ना 25 हाइपेन, अब यू विल यूज द न्यूम पैड, ठीक है ना, नोमरिकल पैड को आप यूज करोगे राइट साइड में जो है। तो अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो वही बात है, 25 या फिर माइनस या फिर हाइपेन मारोगे, तो 25/5/1990, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इफ द एंटर्ड डेटा इज करेक्ट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, देन ओनली ये एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हम काम कर रहे हैं, मानो कि ये लिख दिए, फिर एंटर मारने की कोशिश कर देंगे, कहता है गलत। अब क्या किया ना, 19,900 मार दिए, 19,900 कोई साल होता ही नहीं है, तो कंप्यूटर वो उसको लेगा ही नहीं। तो इसको हम अभी क्या करेंगे ना, इसको एडिट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको एडिट करके अभी एंटर मारेंगे, देखो ले गया। तो 25/5/1990, इसका सैलरी कितना है, मानो इसका सैलरी है 25,000। ये कौन सा ब्रांच से बिलोंग करता है ना, BBSR, हम कोड में यूज करेंगे, तो BBSR रेफर्स फॉर द भुवनेश्वर, ठीक है ना। इसका डेजिग्नेशन क्या है ना, ये ऑफिसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जैसे ही फिर से टैब मारोगे, एंटर मारोगे, तो नेक्स्ट फील्ड में आ जाएगा। एंड आईडी, दिस इज, ये आपको ऑटोमेटिकली आएंगे, इसको आपको कोई एडिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर से टैब मारते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे कोई लिखेंगे राकेश, तो दिस आईडी बिकम्स नंबर 2, ये नंबर 2 ऑटोमेटिकली सीरियल हो गए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। फर्स्ट इंस्टेंट आपको सारे के सारे प्रोसेस अगर याद नहीं रह रहे, तो लेटर ऑन यू कैन डू इट, और फ्लो चार्ट हम वैसे भी दे देंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो आप बिल्कुल समझ सकते हो फॉलो करके। तो राकेश लिख रहे हैं, अब इसमें डेट ऑफ बर्थ मारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मानो अभी इसमें भी गलत मारेंगे, जैसे कि 36 कोई डेट नहीं होता है, तो 36/6/1992 इसे मारते हैं, एंटर करते हैं। बोल रहा है तुम गधा हो, हम मानने को तैयार नहीं है, हम कैसे गधा हो सकते हैं ना, तुम हो, कंप्यूटर कह रहा है तुम हो। अब एंटर मारते हैं, हम थक जाएंगे, वो चीज लेगा नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि 36 का डेट कुछ नहीं होता है बाबू, 26 मारो, ठीक है। तो अब ले गया, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इसको सैलरी कितना मिलता है, इसको सैलरी मिलता है मानो 20,000, ठीक है ना। फिर टैब मार लेते हैं, लेकिन ये बंदा CTC है, CTC मतलब हमारा और एक ब्रांच, CTC रेफर्स टू कटक। सो यू हैव टू पुट BBSR for all the भुवनेश्वर ब्रांच गाइस एंड CTC for all the कटक गाइस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आपको मानना ही पड़ेगा, तब जाकर के लॉजिकली काम करना। और ई बंदा क्या है ना, ई बंदा भी ऑफिसर लेवल के है, तो यहाँ पे एंटर मार देते हैं। फिर से आपको इस फील्ड में कुछ नहीं करना है, एंटर मार देते हैं। फिर से राकेश से अभी आ जाते हैं रोहित में, ठीक है ना। तो रोहित एंटर कर देते हैं, एंटर मार दे रहे हैं। अब इसका भी कोई डेट ऑफ बर्थ दे दे रहे हैं हम, जैसे कि 25/6/1990 ये दे देते हैं, एंटर कर देते हैं। अब इसको कितना पैसा मिल रहा है ना, इसको भी 20,000 मिल रहा है, लेकिन ये जो बंदा है ये BBSR का है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यही बात है, ऑफिसर, ये ऑफिसर लेवल की अभी नहीं है, ये हमारे क्लर्क लेवल की है, ठीक है ना, यही बात है। तो एंटर मार देते हैं। अभी नेक्स्ट वीट आपको यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करना, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट हम एंटर करते जा रहे हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ठीक है। तो हम कम से कम 7 एंट्री करते रहे, अंडरस्टैंड द पॉइंट। चलिए, तो 6 फील्ड का हम एडिट कर दिया। अभी देखिए, राजीव, राकेश, रोहित, रोशनी एंड रेशमा, तो ठीक है ना। तो कोई डिजिग्नेशन अलग है, किसी का सैलरी अलग है, किसी का ब्रांच की लोकेशन हमारा अलग है, अलग, ऑल दीज थिंग्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट। यही चीज हो गया। तो ये हो गया हमारा टेबल का भी डिजाइन, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो डेटा एंट्री करना है तो टेबल की इस फॉर्म में जाएंगे, और आपको अगर टेबल को ही डिजाइन करना है तो आपको इस जो डिजाइन व्यू में आपको जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो टेबल के व्यू में चल जाते हैं, दिस इज द थिंग। अगर ये सेव हो गया हो तो बिल्कुल ये क्लोज हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ये मतलब नहीं कि अब डेटा लॉस होगा। सो इन द रियल टाइम जब हम एंटर करते हो डाटा, सारे के सारे सेव हो जाते हैं, समझ आए, डेटा सेव हो जाते हैं। MS सक्सेस में कोई भी आपको डेटा को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ पे ये तो हो गया टेबल, अंडरस्टैंड द पॉइंट। अब चलते हैं क्रिएट के ऑप्शन में। अब चलते हैं क्रिएट के ऑप्शन में। क्रिएट में टेबल हो गया, क्वेरीज बाद में ही काम में आएंगे जब सारे के सारे हमारे चीज रेडी होंगे, ठीक है ना। तो हम फॉर्म्स में आते हैं। अब फॉर्म्स में क्या काम में आएंगे एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्म में देखते हैं, फॉर्म में फॉर्म विजेड आ जाते हैं, ठीक है ना, फॉर्म विजेड आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, फॉर्म का जादू का छड्डी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना। जादू का छड्डी बहुत कम में आता है बब्बू। तो बात वही है, अभी टेबल क्वेरीज ये किसको रिलेट करोगे, जैसे ही हम टेबल बनाए उस टेबल को ही रिलेट करता है फॉर्म्स।
तो फॉर्म्स क्या होता है ना, एग्जिस्टिंग टेबल में मॉडिफाई, अल्टरेशन, डिलीशन करने के काम आते हैं। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। यहाँ पे हम 7 नाम की एंट्री किए तब ना, मानो 700 होते हैं एम्प्लॉइज, और 700 एम्प्लॉय की आपको सैलरी के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, लोकेशन ब्रांच के हिसाब से आपको डिजाइन करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? समझ में आई बात? तो ये सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही हो सकता है। तो वही बात है, टेबल में अभी देखो लिखा हो एम्प्लॉइज डाटा, और कोई टेबल है नहीं, अगर होता तो यहाँ पे दिखाता, ठीक है ना, वही बात है। अब देखिए अवेलेबल फील्ड्स, अवेलेबल फील्ड्स यहाँ पे सिलेक्टेड फील्ड्स। अब कौन कौन से फील्ड को लेकर के काम करना चाहते हो? क्या आईडी लेना चाहते हो? ये राइट एरो मार दोगे, आईडी आ जाएगा राइट साइड में। दैट मीन्स कि दीज आर द अवेलेबल फील्ड्स ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। एक ही एग्जिस्टिंग टेबल की ये अवेलेबल फील्ड है, मतलब एक एक जो कॉलम था, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, ब्रांच, डेजिग्नेशन जो था, अगर एक 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 हम यहाँ पे राइट क्लिक मारेंगे तो एक एक आएंगे। अगर ये सारे का सारे फील्ड आपको चाहिए तो ये डबल राइट एरो वाला मार दोगे, डबल राइट एरो मार जैसे मार देंगे, सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट मारते हैं, और देखिए ये पूछ रहा है किस हिसाब से आपकी फॉर्म को डिजाइन करना चाहते हो, कॉलमनार, टबलर, डेटा शीट और जस्टिफाइड। तो हर एक चीज देखते हैं। कॉलमनार तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई देगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, नीचे 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 कॉलमनार। टबलर मतलब जैसे हम यहाँ पे देखिए एक्सेल के हिसाब से जैसे हम करते हैं वैसे दिखाई देगा। डेटा शीट तो डेटा शीट लेफ्ट और राइट दोनों साइड काम करोगे। जस्टिफाइड तो एक रो के हिसाब से काम करोगे। तो टैबुलर मारते हैं। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि आपकी फॉर्म के नाम क्या रहेगा, तो एम्प्लॉय डाटा स्पेस हम यहाँ पे देते हैं फॉर्म, ठीक है ना, तब आपकी फॉर्म को हम पहचान सके। तो फिनिश मार देते हैं यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे फॉर्म देखो दिखाई दिया। समझ में आई बात? तो दिस इज द फॉर्म बेस्ड ऑन दी फॉर्म द एग्जिस्टिंग टेबल। एग्जिस्टिंग टेबल, ये देखो टेबल है, ये फॉर्म, दो सेक्शन हम क्रिएट हो गया। सो टेबल में टेबल, अगर इसको कोलैप्स करना है तो यहाँ पे मार दोगे, ठीक है ना, ये आपकी टेबल है, ये आपकी फॉर्म है। समझ में आई बात? तो एग्जिस्टिंग टेबल को अल्टरेशन मॉडिफिकेशन करने के लिए फॉर्म्स बनाया जाता है। तो यहाँ पे भी दो नाम हम एडिट कर सकते हैं। मानो कि ये क्लोज हो चुका है, तो क्लोज हो गया, कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं, फिर से इसमें डबल क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो राइट क्लिक करके ओपन के ऑप्शन में चल जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्म्स क्या होता है, आपको फिर से एडिट करके चीजें देंगे। जैसे कि यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, मानो रेशमा था, रोशनी था, अभी और किसी को एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो राजेश का नाम नहीं है, सबके सब आर वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं राजेश, और उसकी डेट ऑफ बर्थ इस लॉजिकल वे में हमको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मानो कि हम लिखते हैं 13/3/1994, ठीक है, और इसको सैलरी कितना मिल रहा है, 18,000, और ये बंदा एम्प्लॉयड कहाँ पे है, भुवनेश्वर पे है, और इसका डेजिग्नेशन क्या है पूछ रहा है, इसका डेजिग्नेशन है मैनेजर, ठीक है ना। तो यही बात है, फिर से एंटर मारते हैं, और एक एंट्री हम कर देंगे मानो। तो आपको ये 8 नंबर है, 8 नंबर में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर से मारते हैं कुछ जैसे, हाँ, और एक एंट्री कर ही देते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। कोई किसी का नाम क्या था पढ़ो उधर, अच्छा ममता लिख देते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखो ममता लिख दिया हम, यहाँ पे एंटर मार दो, यहाँ पर टैब मार दो, ठीक है ना। हाँ, तो अभी की तो आपका उम्र कम ही है भाई, 2000 है आपकी, ठीक है ना, लेकिन अभी तो नौकरी भी नहीं कर रहे हो ना आप लोग। तो 12/05/1995 तक पहुंच जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15,000, और आप कहाँ पे एम्प्लॉयड हो, CTC हमारा एक ब्रांच है, क्वार्टा इसको जो कोड में लिख रहे हैं, और आपकी डेजिग्नेशन अभी क्या है ना, आप अकाउंटेंट हो, ठीक है ना। तो आपको अच्छा अकाउंटिंग आता है, तो चलिए 15,000 दिया भी जा रहा है। देन लुक एट हियर, तो 8 फील्ड से 8 फील्ड को इसको फॉर्म में, सर तो अभी देखेंगे फॉर्म अगर हो गया एक बार, आपको कहीं पे सेव करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे सेव ऑप्शन है, लेकिन आपको सेव मारने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। ऑटोमेटिकली फील्ड सेव हो जाएंगे जब आप टेबल डिजाइन करो उसको सेव करोगे, बाकी सब ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी इसको क्लोज कर देते हैं, अभी ये एम्प्लॉय डाटा खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 फील्ड आ गया है, हालांकि हमारा 6 फील्ड तक ही काम हुआ था, लेकिन 8 फील्ड आ गया। तो फॉर्म में जनरली क्या होता है, डिलीशन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो एक एक देखिए आप यहाँ पे, जो इमेजिन दिस फॉर द थाउजेंड्स ऑफ डेटा, ठीक है ना। इसको एक एक फील्ड कहा जाता है, एक एक कॉलम देख रहे हो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, ब्रांच, ऑल दिस कॉलम्स आर कॉल्ड द फील्ड्स, एंड एक एक रो जो दिख रहे हो, ऑल आर कॉल्ड द रिकॉर्ड्स, ऑल दीज आर कॉल्ड द रिकॉर्ड्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। एंड ए टेबल इज द डिजाइन ऑफ फील्ड्स एंड द records, it is, and a cell is the intersection of fields and records, understand the point. So just imagine for the thousands and lakhs of the data, understand, lakhs of the records that are being managed effectively, so this can only be possible through the database management system, understand. So यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा थे, एम्प्लॉय डेटा को अभी हम इस सारे के सारे को क्लोज करते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं, ये हमेशा खाली रहेगा, तब आपको अच्छा लगेगा, कोई समस्या नहीं, सब कुछ ये लेफ्ट साइड से निकलेंगे, ठीक है ना। अगर ये भी कोलैप्स हो गया, ऐसे देखो नहीं दिख रहा, तो ये नेविगेशन पान यहाँ पे दिख रहा है, तो नेविगेशन पेन को ऐसे करके आप रिट्राइव कर सकते हो। अगर ये फाइल हम क्लोज भी कर देंगे अभी, तब भी ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट रीड। तो अभी तो हम समझे कि फॉर्म्स की काम क्या होता है।
तो चलिए क्रिएट के ऑप्शन में चलते हैं, फॉर्म्स हम देखें। अभी रिपोर्ट्स क्या चीज होता है देख पाते हैं, ठीक है ना। रिपोर्ट विजेट में जाकर के कर सकते हो। रिपोर्ट विजेट, विजेट जादू का छड्डी देख रहे हो, रिपोर्ट में जादू का छड्डी रिपोर्ट। तो एम्प्लॉयड ये भी पूछ रहा है एग्जिस्टिंग टेबल। अभी हम क्या समझ में आ रहा है ना, ऑल द सेक्शंस that lies right side to the table are linked to the table only. Okay, so queries, forms and reports that are linked to the table only. So if you design the table then only other options can be utilized, otherwise you cannot utilize. Understand? तो चलिए एम्प्लॉय डेटा यहाँ पे टेबल में था, अब देखिए दूसरा टेबल हम बनाए ही नहीं तो टेबल भी दिखाएगा भी नहीं। तो अभी बात है रिपोर्ट्स क्या होता है। मानो बहुत सहज है, हम आपको सिखा रहे हैं कि हम यही देखना चाहते हैं कि आईडी तो जाएगा ही, आईडी को लिख देते हैं एक बार। अच्छा नेम तो बिल्कुल रहेगा, हमको डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब था सैलरी से। अब सैलरी बता देते हैं कौन कौन सा फील्ड को आप लेना चाहते हो अभी कंसिडर में, उसके अंदर में और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, कौन कौन सा फील्ड। तो ब्रांच देखना चाहते हो ये, और डेजिग्नेशन देखना चाहते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट। डेट ऑफ बर्थ हम नहीं, तो मानो ये सब भी नहीं, सिर्फ हम डेजिग्नेशन देखेंगे, ब्रांच हमको नहीं चाहिए था, डेजिग्नेशन देखेंगे। तो फिर से ये सब इतने को नेक्स्ट मारते हैं। अब पूछेगा डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल, तो ग्रुपिंग लेवल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो कि हम एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट मार देते हैं। अब फिर से वही बात है, पूछ रहा है कि आपको कोई तो सीरियली करना होगा ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ करना तो होगा, हम कह रहे हैं कैसे करेंगे ना, आईडी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, ठीक है ना। यही बात है, असेंडिंग ना डिसेंडिंग पूछ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में रह जाएगा। नेक्स्ट मारते हैं। आप पूछ रहे टाबुलर फॉर्म में इसको देखना चाहते हो, टाबुलर फॉर्म में कॉलमनार देखेंगे तो देखो कैसे ऐसे दिखाई देगा, अंडरस्टैंड। जस्टिफाइड तो ये कुछ रो वाइज दिखाई देगा, टाबुलर मतलब सीधा सीधा नीचे जाएगा। अब ये जो रिपोर्ट निकलेगा आपकी पोर्ट्रेट मोड में निकलेगा कि लैंडस्केप मोड में, सेल्फी वाला को सब पता होता है, रील्स बनाते बनाते आप लोग थक चुके हो, आपको पता है क्या चीज होता है। पोर्ट्रेट मतलब ऊपर से नीचे, लैंडस्केप मतलब लेफ्ट से राइट, क्योंकि ये फील्ड बहुत बड़ा है। देख लो ना हमारा इंटरफेस देखो कंप्यूटर की, लेफ्ट से राइट है कि नहीं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो इसको लैंडस्केप मोड में हम देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिर से मारते हैं। अब पूछ रहा है इसका नाम क्या दोगे इस रिपोर्ट को, तो एम्प्लॉय डाटा और यहाँ पे रिपोर्ट लिख देते हैं, ताकि क्या होगा कि हम यहाँ पे एरर जुड़ जाएगा ना, तो कौन सा फॉर्म है, कौन सा रिपोर्ट है, कौन सा क्या है, हम तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए रिपोर्ट लिख दें और प्रीव्यू रिपोर्ट पूछ रहा है, फिनिश मार देते हैं, ठीक है ना। अभी हमारा रिपोर्ट कुछ ऐसा दिखने लगे, अरे वाह। तो ऐसे ही लाख्स ऑफ रिकॉर्ड्स को एक साथ में आप रिपोर्ट्स बना सकते हो, ठीक है ना। तो जो जो हम सेक्शन सिलेक्ट किए थे वही वही सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जूम माइनस कर दिए, जूम प्लस हम मार के दिखा देते हैं। ये देखो दिख रहा है आईडी, आईडी नंबर 1 2 3 पर, क्योंकि हम इस ऑप्शन में लिए थे, असेंडिंग ऑर्डर किए थे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करते तो 8 से शुरू होता। नेम को भी हम असेंडिंग ऑर्डर कर सकते थे, यहाँ पे जैसे कि ए बी सी डी से लेते, या तो सैलरी की असेंडिंग ऑर्डर भी देख सकते हैं, ताकि हमको एक आइडिया हो जाए कि हाँ ज्यादा सैलरी वालों को कितना मिल रहा है, कम सैलरी वालों को कितना मिल रहा है, समझ में आई बात। दिस इज द थिंग। एंड डेजिग्नेशन हम देख सकते हैं कि ऑफिसर इतना जन है, असिस्टेंट है और कौन अकाउंटेंट है हमारे कंपनी में, ठीक है ना। ब्रांचेस से हमें कोई मतलब नहीं था, हमें सिर्फ पैसा और डेजिग्नेशन से मतलब था, यही बात है। तो इसको अभी बढ़िया से अच्छा बच्चा की तरह इसको प्रिंट कर सकते हो। कैसे ना, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है, तो प्रिंट ऑप्शन में आप चल जाओगे, तो जैसे ही प्रिंट ऑप्शन में चल जाओगे आपकी प्रिंटर में वो प्रिंट होने लगेगा। समझ में आई बात। यहाँ पे देखो तीन तीन चार प्रिंट दे चुके हैं हम ऑलरेडी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। चलिए, तो आज की बात में एक ही शॉट में कोई नहीं समझता है, हाँ सारे के सारे समझ जाओगे, ऐसा कोई बात नहीं। सो जस्ट फॉर गेनिंग योर इंटरेस्ट एंड द टेस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द 4 सेक्शंस। लेटर ऑन हमारे पास बहुत टाइम है ना, नेक्स्ट वीक हम इसको सब कुछ बता देंगे, अंडरस्टैंड। बिफोर एग्जामिनेशन एवरीथिंग विल बी टॉट, नॉट अ बिग डील। टाली समझ में आया कि नहीं आपको, पहले लग रहा था कि आप समझोगे, आप तो समझ गए हो कि नहीं कैसे। अरे वाह, वैसे मैनेज होता है पूरा का पूरा अकाउंट सिस्टम कंपनी का, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्या मैन्युफैक्चरिंग भी संभल जाएगा, क्या फैक्ट्री भी संभल जाएगा, क्या वो प्रोडक्शन भी संभल जाएगा, क्या हम सब कुछ कर पाएंगे, दिखाना नहीं आप लोग। तो वैसे ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं, पहले में नहीं समझोगे बाद में समझ सकते हो, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है ना। तो अभी ये प्रिंट प्रीव्यू क्या कुछ दिखा रहा है, हम इसको क्लोज कर देते हैं, चलिए कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट वीडियो हम कहां पे पहुंचे, देखो क्रिएट की सेक्शन में टेबल, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। अभी हम देखेंगे क्वेरीज सेक्शन क्या है। अरे वाह, बहुत सही बात है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो क्वेरी की सेक्शन में अभी आएंगे, देखते हैं क्वेरी क्या चीज होता है। सारे के सारे यहाँ पे कुछ भी अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो ये क्लोज कर दो। अभी आएंगे हम क्वेरीज। तो देखो 3 सेक्शन पढ़ चुके हैं, टेबल, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, तीनों ही हमारा बना चुके हैं, ठीक है ना, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नेक्स्ट वीक वी विल क्रिएट एंड डिजाइन में जाएंगे, क्वेरी के डिजाइन में, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। लुक एट हियर, सबसे पहले आपको कौन से टेबल पे क्वेरी लगाना है वो सिलेक्ट करना होगा। सो आज वी हैव क्रिएटेड ओनली वन टेबल, दैट इज शोइंग ओनली वन टेबल। यू कैन सिलेक्ट द मल्टीपल टेबल आल्सो, ओके। सो जस्ट वी हैव क्रिएटेड वन टेबल, दैट्स व्हाई वी आर सिलेक्टिंग द वन टेबल। सो वन टेबल सिलेक्ट किया, अभी देखो क्या आप सही टेबल सिलेक्ट किए हो, एक एक फील्ड यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या है, क्रिएट,
देन क्रिएट के ऑप्शन में जाकर के क्वेरी सेक्शन, देन क्वेरी डिजाइन, देन टेबल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, एम्प्लॉय डेटा में टेबल सिलेक्ट, ये देखो ये बना। अब एक एक फील्ड को हम लेंगे, ठीक है ना, एक एक फील्ड को लेंगे और एक क्वेरी कितना बढ़िया डालेंगे, देखिए उसके हिसाब से हमारा काम कैसे बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले टेबल वेयर आवर डाटा लाइज इन द फील्ड एंड सेक्शन records. Next it form क्या होता है, form is utilized for modifying the table. Next it reports that is generated based on your various criteria. What is query? The query is that shows the particular data based on our filter and the condition. Okay, this is the thing. तो क्वेरी एक बार लगाते हैं, मानो कि आईडी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये लिखा हुआ। तो एक फील्ड में क्या लेते हैं, इसमें लेते हैं हम आईडी, दूसरा फील्ड में हम क्या लेंगे, यहाँ पे नीचे उसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा फील्ड में हम ले जाएंगे मानो सैलरी, और तीसरा फील्ड में हम मानो ले जाएंगे कि ब्रांच। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। चलिए बहुत सही बात है, एक क्वेरी डालता है। क्या क्वेरी डालेंगे आप एक बार ध्यान से देख लो, क्या ये दिखा पाता है कि नहीं। मानो आईडी तो वो ऑटोमेटिकली आएगा, कोई समस्या नहीं। अब इतना ही प्रीव्यू करेंगे तो फिर भी दिखाएगा कोई। नेक्स्ट रीड आईडी ऑटोमेटिकली आएंगे, इसमें लिए कोई समस्या नहीं। टेबल देखिए, एम्प्लॉय डाटा एम्प्लॉय डाटा एम्प्लॉय डाटा, दैट मींस कि यहाँ पे टेबल भी आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले फील्ड हम बताए थे, एक एक कॉलम का जो नाम होता है टेबल की वो होता है फील्ड। मैट्रिक्स तो आप सबको ही पढ़े हो, कॉलम सबको पता है, वो एक फील्ड होता है। टेबल, अभी एक टेबल के साथ ये तीनों लिंक है, अंडरस्टैंड। हालांकि आप मल्टीपल टेबल के साथ भी लिंक कर सकते हो, आप समझ आ रहे हो। ओहो, दैट मीन्स कि हमारे कॉलेज के डेटा और सामने वाला कॉलेज का डेटा दोनों को लिंक करके क्या हम उसमें से क्वेरी निकाल सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं फिल्टर करके। यस, आप मल्टीपल टेबल को लिंक करके उसमें से भी आप डेटा निकाल सकते हो। समझ में आ रहा बात, ठीक है। अब ये हो गया। नेक्स्ट रीड सॉर्ट कैसे करेंगे, किस हिसाब से सॉर्ट करेंगे, कह रहे आईडी को किस हिसाब से सॉर्ट करेंगे, नहीं अभी आईडी के हिसाब से हम सॉर्ट नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे ना, सैलरी के हिसाब से सॉर्ट करेंगे, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ज्यादा से कम सैलरी में, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, क्राइटेरिया कुछ रहेगा क्या आईडी के लिए, नहीं आईडी के लिए तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन सैलरी के लिए रहेगा। अब देखिए बढ़िया चीज है क्या ना, फर्स्ट है फील्ड क्या, नेक्स्ट है टेबल, उसके बाद सॉर्ट जिसमें लगाना था डिसेंडिंग लगा दिए सैलरी की डिसेंडिंग के हिसाब से, और बाकी ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाएंगे। तीनों शो करना है, शो, अगर ये अनटिक कर दोगे तो वो शो नहीं होंगे फील्ड, ये अनटिक कर दोगे शो नहीं होगा। क्राइटेरिया क्या है तुम्हारा आईडी के लिए, कुछ नहीं है। सैलरी के लिए क्या क्राइटेरिया ना, जिसका भी 20,000 सैलरी होगा, जिसका भी 20,000 सैलरी होगा और वो बंदा कोटक ब्रांच से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है ना, तो 20,000 सीटीसी बिलोंग कर रहा होगा, तो उन सब का डेटा हमको देखना है। समझ में आई बात, उसको क्वेरी लगाना है। तो इसको कैसे दिखेगा ना, यहाँ पे देखिए, अब ये लेफ्ट साइड फाइल के कॉलम के पास में, होम कॉलम में, यहाँ पे हम लगाएंगे रन। अरे वाह, रन, जैसे रील बनाते हैं ना, वाव वाव एने टाइम टाइम रन, वैसे यहाँ पे हो गया रन। तो जैसे ही रन हो गया, दैट मीन्स कि हमारे टेबल की क्वेरी के हिसाब से आ गया। वो कह रहा है कि 6 नंबर रोल नंबर वाला बंदा, 3 रोल नंबर आईडी वाला बंदा, जिसका की सैलरी 20,000 है और कोटक से ये लोग बिलोंग करते हैं। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। अच्छा, इसमें लेकिन एक चीज मिसिंग था, वो चीज क्या है ना, यहाँ तो नाम ही नहीं दिखा। अब जब नाम ही नहीं दिखा तो क्या करेंगे हम, ठीक है, तो उसको नाम भी दिखा देते हैं, अब कोई समस्या नहीं है। फिर से हम जाएंगे इस क्वेरी में, एक बार क्लोज कर देते हैं क्वेरी को। क्वेरी को क्या सेव करना चाहते हो, कह रहे कि हम सेव करेंगे, तो उसका नाम दे देंगे हम क्वेरी 1 एम्प्लॉय डेटा, सेव कर देंगे ना भाई, ठीक है ना। अब जाएंगे क्वेरी में, ये देखो क्वेरी में, तो क्वेरी में डिजाइन व्यू में चल जाते हैं, लेकिन हमको टेंशन ये हुआ कि नाम ही नहीं दिखाया। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो या तो इसको पहले दे सकते हो, बाद में दे सकते हो, ठीक है ना, बाद में दे देते हैं, क्या बात है, नेम दिखा दे तो बात सही है। अभी कह रहा है तो आईडी था, सैलरी था, ब्रांच था। अब उस एग्जिस्टिंग सेव्ड क्वेरी में, क्वेरी बेसिकली क्या करता है हमारा ना, द टेबल्स डेटा को शो करता है आपकी कंडीशन और क्राइटेरिया के अंदर। जैसे यहाँ पे देखो, सैलरी जिसका भी 20,000 होगा, जो कोटक ब्रांच से आ रहा होगा, उसका नाम और डिटेल हमको चाहिए, ये मार देंगे। तो अभी मार दो यहाँ पे रन, तो यहाँ पे देखिए नाम के साथ दिखा दिया। अरे वाह, आईडी है 6 नंबर 3 नंबर, सैलरी है 20,000 और ब्रांच कोटक कोटक की, और नेम रहा रेशमा और राकेश। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सो इन दिस वे यू कैन मेक द क्वेरी आल्सो, एंड अगर as per your need that you can print also. Here you give the print, now printing, and the automatically print will be published. Okay,
सो टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, इसका सीक्वेंस क्या है सबको याद रखो, TQFR। क्या है याद रखो, TQFR, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, सारे के सारे चीज का हम बता दिए। अब लास्ट में इसको क्रॉस कर दोगे, सेव करना चाहते हो पूछ लिया सेव, समझ में यही बात, कोई बात नहीं। रखे थे कहां पे, डॉक्यूमेंट्स जाओ, डॉक्यूमेंट्स में ये देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ एम्प्लॉइज डाटा ACCDB, तो एम्प्लॉय डेटा सेव किए थे और ACCDB ये हमको पता चल गया कि MS एक्सेस वाला फाइल है, तो इसमें डबल क्लिक लगाते हैं। ओके, ये ओपन हो चुका है अभी। तो देखिए वो फाइल्स को फिर से हम देखिए, ये ब्लैंक दिख रहा है सर, कुछ तो नहीं है, नहीं 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 सब कुछ है। ये टेबल देखना चाहते हो, देखो हम टेबल दिखा देते हैं आपको, सारे के सारा डेटा हमारा सुरक्षित है। ओके, ये देखिए हमारा टेबल है, उसमें से आप जितना क्वेरी लगाओगे, जो फिल्टर लगाओगे ओरिजिनल टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर इसमें चाहते हो कि बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया कुछ एडिट करें, तो एडिट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्म्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये फॉर्म्स, फॉर्म्स में आप डाटा एडिट ऑल्टर कर सकते हो, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। और रिपोर्ट्स में क्या होगा ना, रिपोर्ट्स में आपकी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो उसको प्रिंट के लिए, आपकी जो जो डेटा चाहिए होगा। और क्वेरी में क्या होता है ना, आपकी बेस्ड ऑन योर सर्टेन कंडीशंस you filter the data from the existing table, make the note of all these things। so अब हम पढ़ लिए क्या ना, टेबल सेक्शन, क्वेरी सेक्शन, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। आगे की क्लासेस में हम देखेंगे एक बेसिक बिजनेस मॉड्यूल कैसे सेट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, आज के लिए बस उतना ही।